About 2 years ago, a gentleman called Mahesh Shah and I met. I can't recollect how we met or what, but the interesting thing was that he was talking about a movement called the Swadhyay movement. And the Swadhyay movement, which was based on bhakti. And when he mentioned bhakti, it suddenly struck me that bhakti and Sufi movements, which have come surfaced from time to time in Indian history, when societies have been going through, our societies have been going through all kinds of crises, and suddenly to have a bhakti movement which uses devotion to God, translates it altogether into brotherhood of man, seemed a very intriguing idea. And this is what actually got me very interested, that it can and it was being used as an alternate developmental scheme. So the person who started this and the person who leads it with such great inspiration is Pandurang Shastri Athavale, and he lives in Bombay. So one Sunday morning I went to listen to him because he speaks every Sunday morning at the Pathshala here in Bombay. And after listening to him, I got terribly interested. I got interested because not merely was this man so extraordinary in the way he was thinking, but also of what he had achieved over the last 40 years. Over 5 million people, over 15,000 villages spread all over Gujarat, particularly Gujarat, Maharashtra, some parts of Andhra and so on, different parts of India. And how this whole scheme had developed totally without any kind of dependence on anybody, neither the government, nor through industry, nor through any kind of donations, but entirely self-generated process of development. Now this extraordinary phenomenon I wanted to see. So he suggested, after I met him, that I should go and take a tour through various villages and see for myself what was happening. So my two writers and I, we started to go to these villages in Gujarat and discovered that people were doing such extraordinary things. Villages where schools would not be running would now have children starting their education at the ages of 4 and 5. You would have alcoholism disappearing. You would have generation of wealth in a marvelous way. You would see villages spick and span, very clean, all sorts of things like this. Now all this, I said, how does this happen? What is it that has led to this kind of a situation? So that's when I started to study what this whole movement was, what Swadhyay was. Swadhyay, as you know, means study of self, and the stress it lays on development of self-esteem and self-confidence, and the development of relationships, human relationships, that not only parallel but that extend the relationships within a family, because Pandurang Shastri believes that the valid relationships, human relationships, are the ones that are obtained in a family, because that is the relationship in which there are no givers and takers. So there is no superior or inferior relationship. And brotherhood of man can only be developed when this superior-inferior relationships can be removed, where people can function with each other essentially as equals. And how do you feel, that you are an equal? And that you only feel when there is no question of giver and taker. When you share, and how do you share? I mean, what do you share? Not what you can afford to give, but what is essentially the part of your most efficient self. Now, these were the things that were becoming more and more interesting. So I felt perhaps one should make a film of this.
But the film of this would have to be on the methods, how this movement has developed, how it has become such a valid alternate means of for our country, for ourselves. So that's how, while we were researching and working, we came upon this idea of making this film, Antarnaad. Now, the most remarkable feature of this, of course, of this movement, not so much of the film, is the fact that it is based on, essentially, on the simple principle of devotion. संकट के पर्वत हो आगे या तूफानी रेला पीछे, गिरता आसमान हो चाहे शूल भरी धरती हो नीचे, हमें न भय है, अचल हृदय है, जिसके मन योगेश्वर बसता वही सदा विजयी है, चट्टानों में चीर बनाकर जल तो बाहर ही आएगा, हो भीषण अंधियारा लेकिन पथ तो बढ़ता ही जाएगा, हमें न उलझन, सावधान मन, कर्म योग जिसने अपनाया वही सदा विजयी है, बरस बरस के रीता होना ये बादल की आन रही है, महक लुटाना फिर मुरझाना यही फूल की शान रही है, जो अपना है, दे देना है, चंदन सा जो झुक कर मिटता वही सदा विजयी है, संकट के पर्वत हो आगे या तूफानी रेला पीछे, गिरता आसमान हो चाहे शूल भरी धरती हो नीचे, हमें न भय है, अचल हृदय है, जिसके मन योगेश्वर बसता वही सदा विजयी है, वही सदा विजयी है, वही सदा विजयी है, वही सदा विजयी है। रागिनी। अरविंद। हाँ बा। तुम तो कोर्ट से आ भी गए, वो तो अभी तक गायब है। तुम क्यों चाय बना रहे हो? आने दो ना उसे। मीटिंग में देर हो गई होगी। रोज यही कहती है। घर का काम छोटा है ना, उसका अपना काम बड़ा है, पति सेवा से भी बड़ा। सास की तो बात ही छोड़ो, उसको कौन पूछता है इस घर में। आती ही होगी बा। चिल्लाओ नहीं। मुझ पे क्यों गुस्सा करते हो? मैंने क्या किया? एक दिन महिला केंद्र में ना जाओ तो वहां की सारी व्यवस्था चौपट हो जाएगी। प्रभु का कार्य कर रही है माँ। और घर का काम क्या ये पाप का कार्य होता है? नहीं नहीं, ये सब ठीक नहीं है। गृहस्थी, पति सेवा, ये पत्नी का धर्म है।
यहाँ मेरा बेटा चाय बनाए और उसकी बीवी शहर में मारे मारे घूम रही है, औरतों के घरों में घुस रही है, बच्चों को गोदों ले रही है। प्रभु का कार्य कहते हैं इसे। मैं क्या नहीं जानती कि ये क्यों घर में नहीं रहती? क्योंकि घर में कोई बच्चा नहीं है, इसलिए। अब बस भी करो माँ, ये वक्त नहीं है इन बातों का। अभी भी हम लोग आए हैं, कल सवेरे हमें जल्दी भी जाना है। अब तुम क्यों यहाँ खड़ी हो? तुम भी अंदर जाओ, अरविंद के साथ महिला केंद्र की बातें करो। बाकी बातों का नोटिस ही क्यों लेती हो? उन्हें तो तुम अच्छी तरह से जानती हो। लो चाय लो। कल भक्ति फेरी पर कहाँ जा रहे हो? वहीं कनकवा, और इस बार नीमड़ा भी। नीमड़ा? वो डाकू वाला नीमड़ा? हम्म। पर वहां तो सब लोग जाने से डरते हैं। सारे इलाके में दहशत फैला रखी है। आसपास के किसान खेत छोड़कर चले गए। करीब 100 साल पहले भीलपुर के महाराजा ने अपने 2 छुटवाइयों को देश निकाला दे दिया और वो आके नीमड़ा में बस गए। तभी से वो लोग डकैती और उठाईगिरी पे गुजारा कर रहे हैं। हुक्म करो बापू। आज रात एक काम के लिए 3 जना को तैयार रखना। चौपाल पे आना। जी बापू। निकलने से पहला रोटला तो खाई लो। काम के बाद खाई लेगा, अभी कीकला नहीं है। जाओ अंदर जाओ। इस बार ज्यादा होशियारी मत दिखाना, जैसा रण छोड़ के वैसा ही करना। पिछली बार सबको मुश्किल में डाल दिया था। लो अभी क्यों खेलो काका, इन्हें कुछ पिलाओ। मेरी रो गुलाम पाछे दुम दबा के भागी न जाए। याद से सेठ नगीन दास ने तया कैसे चट्टी छूटी थी साले की। मैं बता भी गया। राम राम पंडित। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। सुखी रहो बापा, सुखी रहो। महाराज जी वो जरा। महाराज शकुन ना, आज निकलना ठीक है। 11 रुपया पहले चौपड़ी पर चढ़ाओ। पंडित हम जब पैदा होया था त्यारे मुट्ठी खुली थी कि बंद? हाँ तो शकुन मतलब मुहूर्त आज शुभ काम के लिए पूर्णिमा ठीक रहेगा। तो क्या दिन में डाका डलवाओगे? पूरा अंधेरा हो जाने के बाद निकलना शुभ है। अरे पर पंडित। हाँ कितना बाकी? 5 रुपया वधारे आ चौपड़ी पर चढ़ाओ। छापो छापो है ना। लो पंडित। हाँ तो 11 વાગીને 34 મિનિટે चलना। डाबो पग आगे करीने चलना। और कुछ नहीं। राम राम पंडित। चलता हूँ मैं। राम राम पंडित जी। हाँ राम राम। हाँ पत्ते करो पत्ते। पाछा हटो बड़ा। पता नहीं गाम में आना मना से। अरे कौन से? हाँ हरिजन वाड़ा नो तू। हाँ તમે પધારો પધારો। क्या रे नथु, તમે सब तैयार છો? कब के आके बैठे हैं बापू? तो लो संभालो। बैठ।
एक टीलू, जैसा मैं बोलूं वैसा करना। पहले की जिया गड़बड़ न थी करना। सुनो जी, आइए आओ। अब क्या है? जा जा, वेरी ने हुक्म कैसे टालेगा? अबे जा वेंडिया। हुक्म जाते हो आलोगां के साथ? तो क्या घर में बैठ के चूल्हा फूकू? आओ, आ भी जाएगा। देख, आ वक्त सोना लाऊंगा तारे लिए। क्या चाहिए? कंगन का जोड़ा कि गले का हार? नहीं चाहिए। तमे मत जाओ, आलोगां के साथ तमे मत जाओ। इसका बस चले तो टीलू की पड़ी का बांध अपनी जेब में डाल ले। जेब में नहीं, कहीं और। आप हमारे पास आ भी जाओ। हाँ। सब चुपचाप अपनी अपनी जगह बैठे रहो। जल्दी जाओ भाई। जिसके पास जो गहरे बैठे हैं सब निकाल दो। ताकि ना दे अपना हाथ जल्दी कर। दुल्हन के गहरे नहीं, कोई भी काट दूंगा। साले वेंडिया, कितनी बार बोला मैंने तुझे, नहीं दुल्हन के गहने नहीं लूटना। चलो सब आ जाओ, जल्दी निकालो। अंदर आ जाओ जल्दी। नहीं कोई नहीं लेगा। कोई नहीं डाल दूंगा। चलो भाई बैठो। आ जाओ बस भाई बैठो। आ जाओ आ जाओ। हिलना पहले तू इधर से रख, उधर आ जाओ। रुक जाओ, भागते कहो। नथु, ये माल लेके साथ ही आ जाओ। आई जाओ, रुक जाओ। ये घंटा कहां से आएगा? चल चलो भाग। अरे विंडिया भाग, इसके पास बंदूक है। मदन, आओ बारात ने भी सर दबोचो। आओ घेर लो साली को। भाई लो बंद कर। जल्दी करें लगो। जल्दी कर लगो। रुक जाओ। अरे रुको। तुम मादर को जनो जरा जठे भी आ भी गयो तुम मोने। चलो भागो, चलो। रतू तुम हाल लेन भागी जा। तीनों भाग साला, उनके पास बंदूक है, भाग ले आगे। निकल। रुक जाओ सालो, भागते कहो। मैं कहता हूं गोली मार दूंगा। रुक जाओ, भागो मत, कायरो सालो। मैं कहता रुक जाओ, नहीं तो गोली मार दूंगा। अरे ये मादर का जना जब से आया है, हराम किया हुआ है। તમે सब भागो, मैं देखता हूं इसको।
गोली नहीं चलाना फौजी, नहीं तो हमारी गोली भी चल जाएगी। समय से भागो, भागो समय। मैं कहता हूँ रुक जाओ, नहीं तो गोली मार दूंगा। तीनों तू जा, तू जा। तेरी गोली चली तो मेरी गोली भी चल जाएगी फौजी। तीनों में क्या उसके बाद बंदूक है, उसके बाद बंदूक। मौत के जले पुलिस के बड़वे, रुक जा साले, रुक, रुक, रुक साले। तू भी जीवता नहीं रहेगा जयराज सिंह, मदर के जने। बापा अपनी बहू संभालो, संभालो अपनी बहू। इतने रोड से कुछ नहीं होगा, माथे का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। आले टिल्लू भागे भाग का तमे दे रहे हैं, हवे शांत हो जा। ये भाग लेके मैं क्या करूंगी? बस करो बहू, क्यों जी को ककलाती हो? हमारा भी जवान बेटा खोया है, सर पटकने से वापस नहीं आएगा। अब धीरज रखो। क्या रे? हैं? अनाज थे? हाँ, क्यों? पहले कभी देखा नहीं? 4 दिन थी चूल्हा ठंडा छे। क्यों? अभी ओटवाड़ से इतना जीती ने लाया था। वो सब जुए में हार भी तो गए। अच्छा अच्छा, चल अंदर जा, बच्चों के लिए खाना बना। बक 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 बक। अब बेचारी हंसानु जीना हराम हो जाएगा। किसका? अरे वो छिनाल तो टीलू रखून मेरे माथे पर मरने पर तुली है, और तू उस कलमुई पर दया जताती है। देखो जी, अभागन को गाली ना दो। टीलू भा से आप भी तो चिढ़ते थे हमेशा। क्या? ये भी तो साचू थे कि ना? क्या बोली तू? तूने कभी मेरा भला नहीं चाहा, हमेशा से बकती रही। मैंने क्या जानबूझ करके मेरा सिंदूर मिटाया है? मैंने क्या जानबूझ करके मेरा सिंदूर मिटाया है? निकाल मेरा घर से बाहर।
मुझसे जमान लड़ाती है। चल निकल घर से बाहर। सूरज निकला लगती धरती किरणों ने है धोई स्वाध्यायी के चरण चल पड़े रोक सके ना कोई सूरज निकला लगती धरती। दो कंगन। चलो मदन। हाँ चलो। ये 3 कंदूरा। कंट्रोल। पुलिस में खबर कर देनी चाहिए। नमस्ते। 15,000 रुपए महीने का नहीं देते उन बड़ुओं को। उस कप्तान जयराज सिंह के आदमी होंगे। नाम मतलब मादर के जने का। जीवन है वरदान प्रभु। ये भगत है आगे गांव में। अरे अगर कुछ कहा साहब अभी देखता हूँ। थोड़ा संभाल के, पुलिस के आदमी नहीं हो। यहाँ तो और भी अच्छा है ना। हुए उस नारायण को जगाए कर्म हमारा धर्म। अरे ओ भगतों वहीं रुक जाओ। माँ के जनों जय योगेश्वर। कौन लोगो तुम्हें? हाँ तुम्हें मालूम है इस गांव में हम किसी को नहीं आने देते। ये नीमड़ा गांव है। हाँ काल तक तो था, आगड़ का पता नहीं। आपका मुखिया कौन है? काका बोलो, शुभ काम से। कोई खास काम नहीं, 2-3 दिन यहाँ रहेंगे, आप लोगों से बातचीत करेंगे। 2-3 दिन बातचीत करेंगे काका आपसे। कौन सी बातचीत है? क्या हम पुलिस के बड़वों को नहीं पहचानते? सीधी बात करते हैं सामने से। निकाल जेब में क्या? देखो रे, देखो इनके। क्या बदतमीजी है? रोग लेके देख रे, देख उसके झोले में पिस्तौल तो नहीं है। बड़े निकाल। अरे निकाल। गाँव में जासूसी करने आते हो? बैटरी रख ले। क्यों हमें पता नहीं? चलो अभी फोटो। हेलो 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 चल चल पहचान। साले जासूसी करने आए थे माँ के जने। अब क्या होगा? सारा सामान तो लुट गया। अरे माल ही गया, ईटे तो नहीं गए। मुझे तो लगता है हमें दीव वापस चले जाना चाहिए। 2 दिन बाद कनकवाड़ा जाना था, तब निकल लेंगे। प्रवीण तुम्हारे पास कोई पैसे बचे हैं? देखता हूँ अगर कुछ बचा हो तो। ये इतने हैं। वाह, कनकवाड़ा तक तो आराम से पहुंच जाएंगे। वहीं चलते हैं आज। मगर वहां तो हमें कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा होगा। अरे कांति वापस सब देख लेंगे। ये नीमड़ा वाले तो जानवर हैं। ये हमारी क्या सुनेंगे? अजीत, इनके भीतर जो भगवान है उसे हमें पहचानना है कि नहीं? भगवान उन्हें भूल गए लगता है।
अरे भगवान उन्हें नहीं भूला, भगवान के करीब होने का एहसास उनमें नहीं है और वो एहसास हमें उनमें जगाना है। अरे इस थैले में क्या है? सेब। ला दे। किसी से संबंध जोड़ना इतना आसान नहीं, और वो भी निस्वार्थ प्रेम का संबंध जो हम उनसे जोड़ना चाहते हैं। इसके लिए हमें अपने आप को दृढ़ करना पड़ेगा। जैसे गीता में लिखा हुआ है, किया हुआ व्यर्थ नहीं जाता, निराश नहीं होना चाहिए। तुम इतने चुप क्यों हो? अरविंद भाई, ये जो तिरस्कार है ना, ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। मेरे क्लब में अक्सर ऐसे लोग आते थे और मुझे अपमानित करके चले जाते थे। अरे नीमड़ा वालों को देखकर याद आया, तुम्हारे क्लब में अभी भी जुए का धंधा चलता है? नहीं अरविंद भाई, मैंने वो सब बंद कर दिया है। इधर से ये प्रभु कार्य वगैरह और उधर वो सब कुछ ठीक नहीं लगता। तो गुजारा कैसे चलता है? मैंने बस स्टॉप के पास ही एक पान की दुकान शुरू की है। घर वालों ने इस बात को कैसे लिया? माँ तो समझ गई, लेकिन पत्नी और बच्चे अभी नाराज हैं। लो खाओ, ले खा। शारदा में जय योगेश्वर, जय योगेश्वर। कांति बापा, कांति बापा घेर નથી। क्या गांव से बाहर गए? नारे मंदिर ની तरफ ગયા છે। आज देवी पूजा है ना। अच्छा। अर्जुन सेठ, तेरे को मालूम था मैं घर पर नहीं हूँ, इसलिए हमारी घरवाली से पैसे मांगने गया था। तू अच्छी तरह जानता है पूजा के पैसे मैं दे चुका हूँ, और ऊपर से हमारी घरवाली को बोलता है कि पूजा में आ। तुम्हारे साथ बैठकर वो मर्गी काटेगी पूजा के लिए। अर्जुन सेठ हाथ मत उठाओ, हाथ मत उठाओ अर्जुन सेठ। क्या समझते हो मैंने खरीदी ली तो से? खरीदी के बच्चे, पूजा ने पैसों से दारू पीता? 5 रुपया ना वास्ते बड्डा के सामने मारा। ई पैसा से दारू नहीं पीतो मैं, पूछो सबसे। शिवा, अर्जुन भाई मोटे ना लाग। कहा जो ये राजा से, यानी प्रजा से हम लोग, यानी जात बदल गई क्या? ये माछीमार नहीं हमारी माफक। अर्जुन भाई जेल गया था तो किसने छुड़ाया था तेरे को? तेरे बाप भूल हो गई, गलती हो गई। अरे तुम लोग बीच में मत आओ, सिवा हमारा आदमी है, उसको कौन सा दवा दारू चाहिए मैं जानता हूँ। और ये तुम लोगों ने जो नया
भाईचारे का नाटक सीखा है ना, ये सब बेकार है। इस हरामखोर को डंडे की मार चाहिए। ले जाओ। मारो बजा सर, अर्जुन भाई ने चमचा फेंक। कांति बाबा, ये कौन है? पहले से कभी देखा नहीं। अरविंद भाई, ये शिवा है। 2 साल पहले अर्जुन भाई के साथ था। उनके साथ कुछ खटपट हो गई तो वो दूसरे की बोट पे चला गया। उधर इसने चोरी किया, पकड़ा गया। फिर अर्जुन भाई छुड़वा के ले आए। आजकल अर्जुन भाई के टुकड़ों पे पलता है। चलिए। आओ आओ अरविंद भाई, आओ आओ जी। अरविंद भाई, तुम्हारा सामान किधर है? यहाँ आने से पहले हम दूसरे गांव गए थे, नीमड़ा। वहीं पर सब लूट गया। लूट गया? होता रहता है ऐसा। कहीं बात नहीं। बैठो बैठो अरविंद भाई, मैं सामान का बंदोबस्त कर देता हूँ। कांति बाबा, ये पूजा क्या हो रही थी? हम आपसे कह रहे थे ना अरविंद भाई, ये अर्जुन भाई की विरोध की वजह से हम लोगों का काम आगे नहीं बढ़ रहा। ये जो पूजा थी ना, ये अंधविश्वास है। बहुत सारा रुपया पैसा खर्च करते हैं और खुद हिस्सा नहीं लेते ना। गांव वालों को खुश जो करना है, आप एक बार उनसे मिल लीजिए अरविंद भाई। लेकिन वो तो साफ कह चुके हैं कि हमारे काम में उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं। बाल संस्कार केंद्र की शुरुआत वाले दिन उन्हें बुलाना चाहिए। कैसा रहेगा? हाँ, कोशिश कर सकते हैं। हमारी बात तो वो मानेंगे नहीं। हाँ, आप अगर उनसे मिलेंगे तो शायद मान ले। शिवा से भी मिलना चाहिए, नहीं? हाँ, जरूर मिलना चाहिए। उसका नाम मत लीजिए अरविंद भाई, वो उस पर भरोसा रखने जैसा नहीं है। वो आखा दिन दारू पी के पड़ा रहता है। स्वाध्याय कैसा चल रहा? हर शनिवार को शाम को हम लोग मिलते हैं। बहनें भी आती हैं? हाँ। कितने लोग हो जाते हैं? काफी लोग आते हैं। अच्छा, मैं गादला का बंदोबस्त कर देता हूँ। जय योगेश्वर। जय योगेश्वर। ऐसा लग रहा है कुछ दिनों में आदत पड़ जाएगी। हाँ, सवेरे सवेरे जल्दी निकल पड़ेंगे। हाँ। मछली पकड़ने के लिए ये लोग तड़के निकल जाते हैं। ठीक है। एक गांव में डाकू और दूसरे में दरोड़ी है। अरे अच्छा हुआ जो हम पहले ही लुट गए। कम से कम चैन की नींद तो सोएंगे अब। अजीत, हाँ? ये मजाक अच्छा नहीं है। देखो, अगर हम दूसरे को हल्का समझेंगे, छोटा समझेंगे, तो आपस का विश्वास कैसे बढ़ेगा? हाँ? चलो प्रार्थना करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय। चलो निकालो, ध्यान से रे। चलो बाकी लोग भी पकड़ो ना। ले जाओ, वो उधर है आदमी। प्रवीण भाई, प्रवीण भाई। हाँ? जरा उठिए तो। क्या? 1 मिनट उठिए ना। हाँ? बाहर जरा कोई शायद बीच पे कुछ कर रहा है। क्या? अर्जुन भाई कुछ कर रहे हैं बीच पर शायद। आप चलिए ना मेरे साथ। हाँ। चलिए ना।
स्मगलिंग, है ना? हाँ। चलो चलो जल्दी। माल क्या हो सकता है? सुना? नहीं, ये नाव के मोटर है, टेलीविजन सेट, घड़ियां, कपड़ा वगैरह। बस। आपको कैसे मालूम? जी, जब मैं बम्बई में था तो 3-4 साल तक मैंने स्मगल माल की काफी बिक्री की है। अच्छा? चलो। पकड़े नहीं गए? नहीं, साथ वाला पकड़ा गया। फिर? वो इमरजेंसी का टाइम था, पुलिस मेरे पीछे लग गई और मैं वहां से भाग के वापस दीव आ गया। फिर यहाँ बाप का धंधा शुरू किया। वो जुए का क्लब? तो फिर स्वाध्याय में कैसे आए? वो हमारे मोटे भाई है ना, मोहन पटेल, वो एक बार हमारे गांव आए थे भक्ति फेरी के लिए। बेचारे को मुझ पर काफी मेहनत करनी पड़ी। क्यों? 3 साल। और तुम? मेरी तो पूरी फैमिली स्वाध्याय है प्रवीण भाई। आजकल कॉलेज में छुट्टियां चल रही हैं, इसलिए आप लोगों के साथ आ गया इस बार। मैंने कभी पढ़ाई, स्वाध्याय, इन सब बारे में इतना सोचा नहीं था। घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मैं सोचता हूँ कि लाइफ में कुछ करना चाहिए, मतलब कुछ हटकर। वैसे पिछले 1 साल से स्वाध्याय केंद्र जा रहा हूँ, मगर भक्ति फेरे पर पहली बार आया हूँ। चलो बाकी लोग भी पकड़ो ना। चलो। जय योगेश्वर। जय योगेश्वर। शारदा बहन, वो शिवा जो कल पूजा में था, उसका घर कहाँ है? मैं बताती हूँ। हालो मेरे साथ। आइए। सुनीता, ये उसकी मारा जनाबेन, और ये नानी और गणपत। शिवो क्या थे? सूतो से। जनाबेन, दीव से आए हैं आपसे मिलने। मैं अरविंद हूँ, ये प्रवीण, ये अजीत। कैसा? धन्यवाद। तब दीव से आए हो? हाँ, बस यूं ही आप लोगों से मिलने के लिए चले आए। सोचा कुछ अपनी बातें करेंगे, कुछ आपसे सुनेंगे। मैं क्या बताऊं? तमें बोलो, तमें कुछ सुनाओ। तुम ही कुछ सुनाओ बेटे। गणपत बेटे, भजन आता है? मंदिर जाते हो? हाँ, हर मंगलवार मैं और सुनीता इसको ले जाते हैं मंदिर। अच्छा। माताजी, भगवान केवल मंदिर में नहीं है। क्या? हम लोग मानते हैं कि भगवान हम सब में, आप में, गणपत में, इनमें, मुझ में, हम सब में। शिवा, ये सब दीव से आए हैं भगवान का प्रसार करने को। नहीं माताजी, ये प्रचार, सुधार, सेवा, ये सब हम नहीं करते। अच्छा, तो फिर क्या करते? हम तो आपके और हमारे भीतर के भगवान की बात करते हैं। भगवान? अब भगवान ने हमारे लिए क्या किया ऐसे? भगवान के बिना तो हम एक कदम भी नहीं चल सकते शिवा, सांस तक नहीं ले सकते। हमारा खाना, पीना, सोना सब वही कराता है। वो हमारे लिए इतना कुछ करता है, उसके बदले में कुछ मांगता है कभी? नहीं ना। इसलिए उसके प्रति अपनी कृतज्ञता दिखाने के लिए हमें कुछ तो करना चाहिए। अरविंद भाई, अर्जुन भाई તમારો इंतजार करे છે। હાલો। हाँ, जाओ जाओ जाओ, अर्जुन भाई ने पाछળ जाओ। અહીંયા શું રાખ્યા છે? ये तो बड़ा आदमी है ना, तुम्हारी बात ही समझेगा। आप अपने आप को इतना छोटा क्यों समझते हैं? छोटे नहीं है आप। ना ना, अर्जुन भाई ना सामे हम क्या छे? वो तो बड़ा बन गया, हमें तो कीचड़ में पड़ा છીએ। शिवा, अच्छा अभी हम चलते हैं, कई घरों में जाना है, शाम को मुलाकात होगी। स्वाध्याय में आप लोग सब आइए। जय योगेश। जय योगेश। जय योगेश।
कहिए, हमारे लायक क्या सेवा है? बस यूं ही आपसे मिलने चले आए। अर्जुन भाई, गांव वाले चाहते हैं कि बाल संस्कार केंद्र के शुरुआत के दिन आप वहां आए तो बहुत अच्छा होगा। मैंने माफ करो। क्या? मुझे खरी बात करने की आदत है। अब गांव वालों को आपका प्रचार अच्छा लग रहा है, मैंने पता है। देखिए, हम प्रचारक नहीं, हम तो। मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। आप व्यर्थ में अपना समय नष्ट क्यों कर रहे हैं? आज इन्हें आपकी बातों में रुचि है, कल भूल जाएंगे। मैं इन्हें अच्छी तरह जानता हूं। ये कामचोर, दारूबाज, बीवी बच्चों को पीटने वाले जंगली लोग, मैं इन्हीं में से उभर कर आया हूं। वो सब पीछे छोड़ दिया, इसलिए मुझे ज्यादा जानकारी है। आपके इरादे नेक हैं, पर बेकार मेहनत क्यों करो? इनकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ेंगी और हमारी मुसीबतें। आप नहीं जानते इन लंपटों से काम लेना कितना मुश्किल है। माना कि गरीब हैं, पर इसके लिए मैं जिम्मेदार थोड़ी हूं। मैं तो इनको काम देता हूं, अच्छी रोजी देता हूं। पूछो क्यों? अब आप आए हैं तो मैं अपनी मेहनत का फल भी इन लोगों में बांटने को तैयार हूं। 10,000, 20,000, 50,000 बांटो, पर गांव की व्यवस्था मत बिगाड़ो। इधर आओ बेटे। क्या नाम है तुम्हारा? प्रवीण। प्रवीण? अरे इनका नाम भी प्रवीण है। हाँ? बड़ा प्यारा बच्चा है। हम दान नहीं लेते। क्यों नहीं ले सकते? आपके ख्याल में मैं पाप की कमाई खाता हूं इसलिए? वैसे आप क्या करते हैं? वकील हूं। आप स्मगलर, खूनी, डाकू, इन लोगों के केस नहीं लड़ते ना? अर्जुन भाई, हर एक को इंसाफ का हक है। आप मुझे गुनहगार समझते हैं? मेरे पास 3 नाव हैं, मैकेनाइज्ड, मछली पकड़ती हैं और बाहर का माल भी लाकर बेचता हूं। काम हम लोग पुर्तगाल जमाने से कर रहे हैं, और एक दिन सरकार आकर बोलती है ये अवैध है, स्मगलिंग है, तो ये काम छोड़ दूं। सारा गांव मेरे सहारे पलता है। अर्जुन भाई, धन्यवाद। आप अर्जुन भाई? नहीं। देखिए, हम दान इसलिए नहीं लेते क्योंकि दान देने और लेने वाले में एक अजीब सा संबंध दिखाई देता है। कहीं ना कहीं ऊंच नीच आई जाती है। देने वाला सोचता है कि वो उपकार कर रहा है और लेने वाला हीन हो जाता है। बिना दान के कोई संस्था नहीं चल सकती। देखिए, मैं जो दे रहा हूं वो मेरी मेहनत का फल है, चोरी का माल नहीं। मैं भगवान में आस्था रखता हूं, दारू नहीं पीता, मांस नहीं खाता, समाज में मेरी आबरू है। आप मुझे भी इन मछीमारों जैसा समझ रहे हैं? अच्छा अर्जुन भाई, आज्ञा चाहते हैं। हम लोग शाम को मिल रहे हैं, अगर आपको ठीक लगे तो आप भी आइए। आप जो बताने वाले हैं मुझे नहीं सुनना। तो मत सुनिए, आप अपनी कुछ रोमांचक बातें हमें सुनाइए वहां आकर। अच्छा अच्छा भैया। अच्छा, आप लोगों में से कोई कुछ सुनाइए ना। क्या? कोई भावगीत, कोई भजन? भगत जी, कुछ सुनाइए ना। प्रभु मैं द्वार तुम्हारे आया, प्रभु मैं द्वार तुम्हारे आया। हर पैड़ी पर माथा टेका, हर पैड़ी पर माथा टेका, ठौर कहीं ना पाया। मैं द्वार तुम्हारे आया, प्रभु मैं द्वार तुम्हारे आया। फंदा बन कर पड़ा गले में, फंदा बन कर पड़ा गले में, जन्म मरण का फेरा। मैं कोलू का बैल बना हूँ, मैं कोलू का
अपने से उकताया, मैं द्वार तुम्हारे आया, प्रभु मैं द्वार तुम्हारे आया। तुम ही तो हो सब कुछ मेरे, हाथ नहीं कुछ मेरे। डूब रहा मैं भवसागर में, डूब रहा मैं भवसागर में, क्यों मुझको बिसराया, मैं द्वार तुम्हारे आया, प्रभु मैं द्वार तुम्हारे आया। वाह, बहुत ही। पर एक बात है, भजन सुनते वक्त ऐसा लगा जैसे भगवान आपके पास नहीं, बहुत दूर हैं। आप बहुत ही हीन भाव से भगवान से कृपा की भीख मांग रहे हैं। आप लोग किसी से कम नहीं, सागर पुत्र हैं आप, वाल्मीकि और व्यास के वंशज हैं। व्यास जिन्होंने महाभारत की रचना की, मत्स्यगंधा के बेटे थे, और वाल्मीकि जिन्होंने रामायण लिखी, कोली थे। तुम्हें ऐसा मानते हो, लेकिन और दूसरे तो ऐसा नहीं मानते। देखिए, आप अपने में आत्मविश्वास जगाइए। मैं आप लोगों को वाल्या की कहानी सुनाता हूं, जो बाद में वाल्मीकि बने। गंगा नदी के किनारे एक मछुआरा रहता था, जिसका नाम था वाल्या। एक बार बहुत भयंकर अकाल पड़ा, तो वाल्या अपना और अपने परिवारजनों का पेट भरने के लिए डाके डालने लग गया। जंगल में जाकर यात्रियों को लूटा करता था। एक दिन नारद मुनि अपने एक तारे पर नारायण नारायण करते हुए उस जंगल से गुजरे। घेर लिया वाल्या ने उनको, धमकाया, जो कुछ है अंटी में धर दो और यहां से फौरन चल दो। नारद बोले, ये तो पाप कर्म है भाई, इसको छोड़ो, करो भलाई। सच की राह कभी मत भूलो, नेकी से जो मिले वही लो। वाल्या बोला, अपने लिए नहीं करता हूं, परिवारजन जो भूखे हैं उनका पेट भरा करता हूं। नारद बोले, ये तो धंधा है ऐसा, पाप कर्म में सबका हिस्सा। जब यमराज हिसाब करेंगे तो क्या घर वाले उस पाप के साझीदार बनेंगे? क्यों ना बनेंगे? वाल्या बोला। घर फिर जाकर वाल्या ने पूछा, चुप्पी साधी सब लोगों ने। मां बोली, हमने तो नहीं कहा था कि लूटो मारो डाका डालो, तुमने ही चुना है काम, अब तुम ही भोगो इसका परिणाम। घूम गया वालिया का सर था, कुछ भी सूझ नहीं। अपने घेर जाओ, मैं सुन ली तुम्हारी बात, तुम्हारी बात। अल्लाह तो तुम्हें लो, हमें सुधारना होता है। अरे उसका दिमाग ठंडा करना है, पानी लाओ, पानी लाओ, पानी लाओ। मैं जानता हूँ तुझे यहाँ किसे भेजा है। अर्जुन भाई, बीजा कौन? अरे नालायक, ये लोग पोताना काम धंधा छोड़ के हमको मिलने आते हैं हमारी भलाई के लिए, और तू जंगली बना करता है। नालायक के गांव ने मुंह खराब कर दिया, अब तेरे कारण ये लोग फिर नहीं आने वाले। हाँ, जल्दी क्या पानी लाओ, पानी लाओ, पानी। अरे नशे में पूरा धुत है, होश नहीं है इसे। क्यों पीता है इतना? सुबह से चढ़ा रहा है। प्रवीण भाई, वो दरोड़िया आ रहा है। तुम चलो ना, तुमको क्या है? वो अभी भी आ रहा है प्रवीण भाई। आप कुछ करिए ना अरविंद भाई, प्लीज। तुम दोनों यहीं रुको, मैं बात करके आता हूं।
शिवा, क्या बात है? क्या बात है? तबीयत तो ठीक है ना? हमें तुम्हारे लिए बड़ी चिंता थी। ठीक हो ना? हाँ, मने का हुआ है, मैं ठीक हूँ। चलो अच्छा है, हम लोग दीव लौट रहे हैं। अच्छा हुआ तुमसे भेंट हो गई। चलते हैं। चलो। क्या कह रहा? नहीं कुछ नहीं, वो अरविंद भाई वो फिर आ रहा है। कुछ कहना है शिवा? भगवान की कसम अरविंद भाई, मैं वो अर्जुन भाई ना कहवाती काले गड़बड़ नहीं की। मैं वो अर्जुन भाई ना गुलाम नहीं, यही खोटा बोले थे। तमें बदा लोग वापस आई जा। आएंगे अगली एकादशी को। क्यों प्रवीण? हाँ, और शिवा तुमसे जरूर मिलेंगे। अच्छा, जय योगेश्वर। जय योगेश्वर। वाह, चलो खाना खा लो। रागिनी, तुमने भी खाना नहीं खाया? फिर झगड़ा हुआ? आओ आओ। आज महिला केंद्र में क्या हुआ? बहुत अच्छा डिस्कशन था। किस विषय पर? यही कि भगवान आपके लिए कार्य नहीं करते, आपके साथ कार्य करते हैं। क्या शिकायत कर रही है तेरी बेरी मेरे बारे में? वाह, हमने तो कोई बात भी नहीं ली आपके बारे में। आओ बैठो, खाओ खाना। ये तो मेरे सामने मुंह ही नहीं खोलती, जीभ बंदी हो जाएगी ना उसकी। मैं कहती हूँ इसके सर पर भूत सवार हुआ है, तुम उसे ओझा के पास ले जाओ, झाड़ फूक कर ठीक कर देगा। कैसी अंधविश्वास की बातें करती हो? तो फिर दूसरी शादी करोगे? कर लो। तुम्हें अपना कुल का नाम आगे बढ़ाना है या नहीं? मुझे तो मरने से पहले अपने पोते का मुंह जरूर देखना है, समझे? क्या समझू माँ, तुम कुछ सुनती तो हो नहीं। इसलिए कि तुम असल मुद्दे पर आते ही नहीं, गोल गोल बातें करते हो। घर में बच्चा नहीं है, मूल कारण यही है, और ये जानबूझकर पैदा नहीं करना चाहती। उसका जाना आना बाहर बंद हो जाए ना, इसलिए तुम दूसरी शादी कर लो। चलो बाप, खाना शुरू करो। नीमड़ा जाने का फैसला ही हमारा गलत था। वहां जाते ही लोगों ने हमें लूट लिया, सब कुछ छीन लिया हमारा। अजीब तो बात घबरा गया। कनक बाड़ा ने भी एक अजीब कैरेक्टर मिला, उसने बैठक में आकर मछलियां फेंकनी शुरू कर दी। घर में बच्चे की कमी तुम्हें बहुत खलती है ना? देखो, इतने साल हो गए शादी को, मैंने कभी इसका जिक्र किया?
हर बात अपने अंदर क्यों रखती हो? कहोगे नहीं तो कोई कैसे जाने कि तुम क्या चाहती हो? भाभी ये क्या है? धूल से तू जाने ही ना, मतलब मरने वाले को तू भूले नहीं, और जब तू बड़ा हो जाए तो खून का बदला जरूर ले। क्या सब तू कर रही है? अरे भगवान जाने इसके माथे पे कौन सा भूत सवार થઈ ગયા છે। पीलू बा के